Good evening, everyone. Welcome to the new class. In this class, we will be studying the Civics chapter first, Democracy. In the earlier three videos, we have discussed what is democracy and the two important features of democracy. So, in this video, we'll be starting with the third important feature of democracy. The third important feature of democracy is one person, one vote, and one value. As you all know, that under Article 326 of our Indian Constitution, we have been guaranteed a right to vote. That means every citizen who has attained a minimum age of 18 years and has a citizenship of a particular country is entitled to vote. And that vote is very important because these votes only help a party to form their majority rule and run a government for the next 5 years or whatever the time period they may be following in their own particular country. वोटों के आधार पे ही ये डिसाइड होता है कि कौन सी पार्टी जीत रही है, कौन सी पार्टी हार रही है. सो दिस वोटिंग इन दिस वोटिंग प्रोसेस ईच वोट हैज़ इट्स ओन वैल्यू. इसलिए सब लोगों को ये राइट दिया गया है irrespective of what the background they are coming from, what class they are coming from, educated, uneducated, skilled, unskilled, it doesn't matter. The matter is that every citizen has the right to vote. इसलिए हर वोट का अपना एक इम्पोर्टेंस होता है. Because we live in a country that is following a theme of democracy, and democracy means people's rule, so people should be given the right to elect their representatives, and hence article 326 justify this statement because it guarantees a right to vote to all its citizens, thereby justifying the theme of democracy, that is people's rule. Now, although this principle has been accepted all over the world, ये जो principle है right to vote का, it has been accepted at almost every place, but कुछ examples हैं ऐसे जहाँ पे हम लोग देखेंगे कि this right has been denied. बहुत जगह पे ये right लोगों को दिया नहीं गया है. तो कौन कौन से examples हैं? I have just numbered them. So first one is a case of Saudi Arabia. 2015 तक Saudi Arabia में women were not having the right to vote. There are two communities, male community and female communities. Until 2015, male community was considered as superior to female community, and hence only the male community were entitled the right to vote, and women were denied of this right. So there was a disparity seen in Saudi Arabia. This is the case up to 2015. Now the conditions have improved. Next place is Estonia. एस्टोनिया एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे सिटीजनशिप इस तरीके से बनाया गया है कि वहाँ पे जो माइनॉरिटी ग्रुप है, दैट मीन्स द रशियन माइनॉरिटी ग्रुप, दे वर नॉट गिवन द राइट्स, दे वर नॉट गिवन द राइट टू वोट. माइनॉरिटी मीन्स वो कम्युनिटी जिसका नंबर कम होता है, मेजॉरिटी मीन्स वो कम्युनिटी जिसका नंबर ज़्यादा होता है. तो इन एस्टोनिया रशियन माइनॉरिटीज़, रशियन जो कम्युनिटी थी दैट वॉज इन माइनॉरिटी, एंड हेंस दे वर नॉट गिवन द राइट्स, एंड हेंस दे वर not given the right to vote also. So this is also a place where we can see that there is a disparity. Next is Fiji. Fiji mein there were two type of Fijians. One was the indigenous Fijians, the native ones whose origin was from basically that place only, and second one was the Indian Fiji. Indian Fiji means the people who have migrated due to some reasons from India to Fiji and they have settled there. तो इन दोनों में भी बहुत ज़्यादा डिस्पैरिटीज़ थी. जो इंडिजिनस नेटिव फिजियंस थे दे वर गिवन ऑल द राइट्स, बट द इंडियन फिजियंस वर डिस्क्रिमिनेटेड एंड दे वर डिनाइड सम राइट्स. तो these three places or these three examples are highlighted so that you can understand that even though it has been accepted worldwide, there are some places or there were some instances where we can see that this basic right of voting was denied. So we can see that in by the above given places or the instances, the third feature of democracy is violated. It was not given to people appropriately. So the third feature of democracy says that each adult citizen must have one vote
and each vote must have one value because every vote counts for the formation of a majority government. Next we have the fourth feature, rule of law and respect for rights. यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से द सिटीजन्स हैव बीन गिवन सम बेसिक राइट्स जैसे दे आर फ्री टू थिंक, दे आर फ्री टू एक्सप्रेस देयर ओपिनियंस, दे आर फ्री टू क्रिटिसाइज द वर्क ऑफ द रूलिंग पार्टी, देयर इज़ अपोजिशन पार्टी ऑल्सो, अपोजिशन पार्टी के पास राइट होता है कि वो रूलिंग पार्टी के वर्क को क्रिटिसाइज कर सके. सो ये सब बेसिक राइट्स होती हैं. So basic rights should be given and respect for rights मतलब हर गवर्नमेंट को रिस्पेक्ट करना चाहिए. जो राइट्स दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से लोगों को, वो लोगों को मिलने चाहिए. एंड इफ़ दे आर नॉट रिस्पेक्टिंग दोज राइट्स, इफ़ दे आर नॉट प्रोवाइडिंग दोज बेसिक राइट टू इट्स सिटीजन, देन again the feature of democracy will be violated. So here we will study about a country called Zimbabwe, and this will show that although elections were held, everything was held, but after election the government was not giving the basic rights to its citizens, और जो respect थी उनके rights की वो उनको नहीं मिल रही थी. So we will study the case of Zimbabwe. So Zimbabwe is a country that got freedom from the white minority rule in 1980. सुना होगा ब्लैक एंड वाइट रूल. तो यहाँ पे ब्लैक मेजॉरिटी में थे, वाइट माइनॉरिटी में थे, बट स्टिल ब्लैक मेजॉरिटी कम्युनिटी वॉज नॉट गिवन द राइट्स. ओनली देयर वॉज अ डोमिनेशन ऑफ वाइट माइनॉरिटी. वाइट माइनॉरिटी इनको रूल कर रही थी एंड दे वर डिप्राइव्ड ऑफ ऑल द फैसिलिटीज़ एंड ऑल द राइट्स until 1980, क्योंकि 1980 में फाइनली they got freedom from the white minority rule and they started ruling as an independent organ. हर कंट्री में फ्रीडम स्ट्रगल स्टार्ट करने के लिए कुछ लीडर्स होते हैं. फॉर एग्जांपल इंडिया में, इफ़ यू टॉक अबाउट इंडिया, यहाँ पे फ्रीडम स्ट्रगल स्टार्ट करने के लिए बहुत सारे नाम हैं. उसमें सबसे जो हाईलाइटेड नेम रहता है वो महात्मा गांधी का रहता है. ठीक उसी तरह से जिम्बाब्वे में व्हेन द फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट वाज स्टार्टेड, देयर वाज अ नेम रॉबर्ट मुगाबे. तो रॉबर्ट मुगाबे इस पूरे मूवमेंट का लीडर था जिसने ये मूवमेंट स्टार्ट किया था. और जिस पार्टी ने इसको स्टार्ट किया था, ये फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट, उसको हम लोग कहते हैं ज़ानू PF. ठीक है, ZANU बीच में हाइफन PF. तो ये पार्टी थी जिसने सारे फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट को स्टार्ट किए थे. क्योंकि इन्होंने स्टार्ट किया था तो 1980 के बाद से जितने भी इलेक्शंस हो रहे थे हमेशा उनको जीतने वाली भी पार्टी यही हो रही थी, बिकॉज it has helped people to get freedom. So after the freedom, this very party was in rule. Its leader was Robert Mugabe. Robert Mugabe ZANU PF का leader था. Although the elections were held, but it was always won by ZANU PF. जैसे पाकिस्तान में था, चाइना में था कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, PRI का पार्टी था, वैसे ही ZANU PF एक पार्टी है जिम्बाब्वे की जो रूल में आने के बाद हमेशा इलेक्शंस में जीती थी. क्यों जीती थी? बिकॉज दे वर यूजिंग द रॉन्ग मेथड्स. रॉबर्ट मुगाबे वॉज वन पॉपुलर लीडर ऑफ ZANU PF, बट स्लोली ग्रेजुअली विद द पैसेज ऑफ टाइम उसके गलत तरीके यूज़ करने की वजह से उसकी अनपॉपुलैरिटी ज़्यादा फेमस हो गई थी. पॉपुलैरिटी कम हो गई थी, अनपॉपुलर ज़्यादा हो गया था. तो बहुत सारे मेथड्स उन्होंने अडॉप्ट किए थे ताकि वो इलेक्शंस को जीत सके. तो क्या क्या स्ट्रैटेजीज थी दैट आई हैव जॉटेड डाउन. His government made changes in the constitution many a times in order to increase the power of the president. क्योंकि रॉबर्ट मुगाबे हैज़ टेकन द डेजिग्नेशन ऑफ प्रेसिडेंट, तो इनकी गवर्नमेंट ने बार बार कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे चेंजेस किए थे सो डैट आफ्टर मेकिंग द रिक्वायर्ड चेंजेस द प्रेसिडेंट्स पावर कैन बी इंक्रीज्ड. और जब इंक्रीज़ हो जाएंगे तो वो लेस अकाउंटेबल हो जाएगा और वो अपने मर्ज़ी के हिसाब से लोगों पे रूल करेगा. एंड दैट्स व्हाट was the motive of Robert Mugabe. Therefore, his government made changes in the constitution many a times so that the power of the president can be increased. Second, he wanted to be less accountable क्योंकि उसको मालूम है कि अगर वो कुछ भी गलत करेगा तो लोग उससे क्वेश्चनिंग नहीं कर पाएंगे. So he wanted his powers to be increased in such a way and that is why they made
amendments in the constitution again and again. Next is the party workers of opposition party were constantly harassed and their meetings were disrupted. ऑपोजिशन पार्टी का काम होता है रूलिंग पार्टी की वीकनेसेस को हाईलाइट करना, लोगों को बताना कि दे आर वर्किंग इन अ रॉन्ग वे सो दैट इन द नेक्स्ट इलेक्शन दे कैन वोट अगेंस्ट देम. लेकिन यहाँ पे ऑपोजिशन पार्टी के वर्कर्स जो रूलिंग पार्टी के काम को गलत दिखाते हैं उनको लगातार हरास किया जा रहा था एंड दे वर कॉन्स्टेंटली टोल्ड दैट दे आर नॉट अलाउड टू हेल्ड मीटिंग्स अगेंस्ट देम. और जब भी उनकी कोई मीटिंग्स होती थी तो दे वर डिस्टर्ब्ड, दे वर डिस्टर्ब, दे वर नॉट अलाउड टू कंडक्ट मीटिंग्स एंड ऑल. थर्ड है एनी प्रोटेस्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट वॉज डिक्लेयर्ड इलीगल. अगर कोई भी धरना हो रहा है, कोई भी कुछ प्रोटेस्ट हो रहा है, डेमोन्स्ट्रेशंस हो रहा है गवर्नमेंट के अगेंस्ट में, रूलिंग गवर्नमेंट के अगेंस्ट में, तो उसको इलीगल डिक्लेयर कर दिया जाता था. उसको बोला जाता था कि दिस इज़ समथिंग आउट ऑफ लॉ और उसके लिए उनको पनिश करके दे माइट बी केप्ट बिहाइंड बार्स. तो ये सब स्ट्रैटेजीज थी जो मुगाबे ने यूज़ की थी सो दैट ही कैन विन इलेक्शंस. नेक्स्ट, a law was passed according to which the right to criticize the president was limited. हर किसी के पास राइट होता है ताकि आप प्रेसिडेंट की फंक्शनिंग को क्रिटिसाइज़ कर सको. लेकिन यहाँ पे एक लॉ पास हुआ था, उसके हिसाब से जो ये क्रिटिसिज्म का राइट होता है उसको काफ़ी लिमिटेड कर दिया गया था. नाउ द पीपल वर नॉट दैट मच फ्री टू क्रिटिसाइज द प्रेसिडेंट. नाउ दे वर वेरी कन्फाइंड. नेक्स्ट, मीडिया वॉज अंडर फुल कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट. मीडिया पूरी तरह से गवर्नमेंट के अंडर में थी एंड what has to be viewed on the channel, what is to be presented on the channel, that was entirely in the hands of the government. जो गवर्नमेंट उनको बोलेगी वो दिखाएंगे, जो गवर्नमेंट उनको बोलेगी वो उसको प्रिंट करेंगे. they were not able to work as per their own will. सब कुछ गवर्नमेंट के हिसाब से हो रहा था. नेक्स्ट, जर्नलिस्ट हु वेंट अगेंस्ट द गवर्नमेंट वर कॉन्स्टेंटली हरास्ड. जो जर्नलिस्ट थे, जो मीडिया रिपोर्टर्स थे, जो लिखते थे, अगर वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट में कुछ लिखते थे तो उनको भी काफ़ी ज़्यादा हरास किया जाता था. तो ये सब चीज़ें हैं जो रॉबर्ट मुगाबे ने फॉलो की थी सो दैट ही कैन इंक्रीज हिज पावर, सो दैट ही कैन विन द इलेक्शन. इवन द कोर्ट जजमेंट्स अगेंस्ट द गवर्नमेंट वॉज इग्नोर्ड एंड जजेस वर प्रेशराइज. यहाँ तक कि जो सुप्रीम अथॉरिटी है, जुडिशरी जिसको बोलते हैं, देयर आर 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. लेजिस्लेटिव का काम होता है लॉज बनाना, एग्जीक्यूटिव को राइट होता है कि जो लॉज बने हैं उनको इम्प्लीमेंट कराना, एंड जुडिशरी सीज वेदर द लॉज आर इम्प्लीमेंटेड इन अ राइट वे और नॉट. तो जुडिशरी के जो सुप्रीम अथॉरिटी थी उनके डिसीजन भी अगर कभी गवर्नमेंट के अगेंस्ट में आते थे तो उसको इग्नोर कर दिया जाता था एंड द जजेस वर प्रेशराइज्ड. जजेस को प्रेशराइज किया जाता था कि आप हमारे फेवर में ही डिसीजन दोगे, आप हमारे अगेंस्ट में डिसीजन नहीं दोगे. तो यहाँ तक कि मीडिया, सुप्रीम अथॉरिटी, एवरीवन वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ रॉबर्ट मुगाबे. फाइनली हर चीज़ का एक एंड होता है. सो फाइनली रॉबर्ट मुगाबे वॉज फोर्स्ड आउट ऑफ ऑफिस इन 2017. सो जिम्बाब्वे में 1980 से 2017 तक रॉबर्ट मुगाबे का रूल था. हिज पार्टी ZANU-PF was in complete rule and finally in 2017 they were forced out of the power. उनको पावर से हटा दिया गया था. So with those points we can conclude that it is very important to keep an eye on the functioning of the government before and after the elections. सिर्फ इलेक्शन को देखना इम्पॉर्टेंट नहीं होता है, इलेक्शन के पहले कौन सी स्ट्रैटेजीज वो अपना रहे हैं और इलेक्शंस के बाद वो क्या कर रहे हैं. क्योंकि बिफोर इलेक्शंस गवर्नमेंट मेक फेक प्रॉमिसेस टू इट्स सिटीजन्स, ये करेंगे वो करेंगे, बट वंस द इलेक्शंस आर ओवर एंड दे हैव फॉर्म्ड अ मेजॉरिटी एंड दे आर रूलिंग इन द गवर्नमेंट, they forget all their promises and they work just opposite to the things they were being told to the people. जो भी promises वो लोग करते हैं उसके just opposite में वो लोग काम करना शुरू कर देते हैं. It is important for the state to respect some basic rights of the citizens and give them the opportunity to participate in the decision making process and be a part of the system. Because fourth feature ही है कि आपको respect देना है और लोगों को rights देने हैं. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो स्टेट है वो अपने सिटीजन्स को बेसिक राइट्स दे. उनके जो बेसिक राइट्स हैं टू थिंक, टू एक्सप्रेस देम, टू क्रिटिसाइज द रूलिंग पार्टी, ये सब बेसिक राइट्स उनको दे.
और ये देखे कि वो राइट्स उनको अच्छे से मिल रहे हैं. And if it is not being done, then the fourth feature of the democracy will be violated. Citizens should be free to think, have their own opinions, to protest and criticize the wrong functioning of the government. जो basic rights हैं citizens के कि वो उनको अपने खुद की सोच होनी चाहिए, उनके खुद के opinions होने चाहिए. If they want to criticize the working of the ruling party, they can have the right to criticize the wrong functioning of the government. ये सब rights जो है ये अपने citizens को, हर government को देने चाहिए. देन ओनली द फोर्थ फीचर ऑफ डेमोक्रेसी विल बी जस्टिफाइड. अगर आप ये सब राइट्स अपने सिटीजन्स को दे रहे हो, उनके राइट्स की रिस्पेक्ट कर रहे हो, तभी आप फोर्थ फीचर को जस्टिफाई कर रहे हो. अगर आप नहीं दे रहे हो, देन द फोर्थ फीचर ऑफ द डेमोक्रेसी इज कम्प्लीटली वायलेटेड. सो हियर कम्स द एंड ऑफ द टॉपिक. फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, 4 फीचर्स थे, 1 2 3 4. थर्ड फीचर, फोर्थ फीचर आई हैव कवर्ड इन दिस वीडियो, और फर्स्ट और सेकंड फीचर मैंने अपने पहले वीडियोस में कवर कर दिए थे. नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल बी explaining advantages of democracy, disadvantages, broader meaning of democracy. The summarize theme will be explained to you. I hope you all have understood the content. You all can read the chapter. If you have any sort of doubt, you can give your suggestions in the comment box, and I will be providing you a video of that particular topic in which you are or you might be facing the problem. Till then, take care. Bye bye.